Hello, good morning all. Myself Arun Sharma, PGT Physics. So today we will start the physics portion of grade 10, resistance in series or resistance in parallel, or we can say that combination of a resistance. There are two or more than two resistor which can be combined in series or parallel. So first of all we can do the derivation for resistance in series and resistance in parallel. So first of all, grade 10, first topic is resistance in series. So there are two or more than two resistance which is connected in series. These are the three resistance which is connected in series. It's your first resistance R1, R2 and R3. Here connected a key. If we press the key, now the current flowing in a conductor from positive to negative. In series, you can remember one more thing. If number of resistance are in series, then current remain constant in the circuit. Current क्या रहेगा? Constant रहेगा. So the potential difference of a resistance R1 is V1, V2 and V3, and the total potential difference is V. So we can say that V potential difference combination of V1, V2 plus V3. So according to Ohm's law, V is equal to I into R. Similarly, V1 current remain constant, V1 IR1, similar V2 IR2 and V3 is equal to IR3. So now these four value put in this equation. V is equal to IR is equal to V1 IR1 plus IR2 plus IR3. So I remain common, I R1 plus R2 plus R3. So I remain cancel out. R is equal to R1 R2 plus R3. It's your resistance in series. ये जो आपका फॉर्मूला बना, ये किसका बना? रेजिस्टेंस इन सीरीज. सो आपने फॉर्मूला याद रखना है. इसके अकॉर्डिंग जब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल करेंगे तो दोनों की कॉम्बिनेशन में आ सकता है. मीन सीरीज का भी आ सकता है और पैरेलल का भी बन सकता है. आफ्टर दैट अब यहाँ पे हमारे पास एक कंडीशन बना कि जब रेजिस्टेंस जो है, रजिस्टर जो है सीरीज में, तो करंट कांस्टेंट रहता है. जब रेजिस्टेंस पैरेलल में हो तो पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहता है. रेजिस्टेंस इन पैरेलल, तो याद रखेंगे जब रेजिस्टेंस पैरेलल में तो बी मीन पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा. तो यहां मेरे पास तीन रेजिस्टेंस है विच इज कनेक्टेड इन पैरेलल. की resistance R1, resistance R2, resistance R3. If two or more than two resistance which is connected in parallel, if we press the key, now again current flowing in a conductor from positive to negative. जब यहाँ पे करंट आएगा तो तीन अलग अलग ब्रांचेस है, I1, I2 एंड अगेन I3. तो क्या लिख सकते हैं? I is equal to I1 plus I2 plus I3. Again according to Ohm's law, V is equal to IR and I is equal to V upon R. Similarly, I1 is equal to V upon R1, I2 is equal to
B upon R2 and I3 इज इक्वल टू B upon R3। फिर क्या करेंगे, इन चारों का वैल्यू हमने इस इक्वेशन में पुट करना है। I का वैल्यू आ रहा है आपके पास B upon R, B upon R इज इक्वल टू I1 का वैल्यू आ रहा है B upon R1 प्लस B upon R2 प्लस B upon R3। B रिमेन कॉमन, 1 by R is equal to B 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3। B remain cancel out, 1 upon RP, P mean parallel, 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3। तो ये आपके पास रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो नेक्स्ट आपने ये याद रखना है कि जैसे कोई भी सर्किट डायग्राम है, आपने वहां पे, चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल पोर्शन करते हैं, और आपने समझना है कौन सा रेजिस्टेंस सीरीज में और कौन सा रेजिस्टेंस जो है रजिस्टर जो है पैरेलल में, और कैसे सॉल्व करेंगे आप। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ये डायग्राम गिवन है, ये डायग्राम गिवन है, और आपको बोला गया है जैसे ये 3 ओम का है, ये 6 ओम का है, ठीक है, और ये अगेन 3 ओम का है या 2 ओम का है। ये आपके पास 3 रेजिस्टेंस दिए हुए हैं, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। और आपको बोला है कि कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या काम करना है, जैसे मैंने नंबरिंग कर दिया, इस रेजिस्टेंस को नाम दे दिया मैंने R1। आप किसी को भी नंबर कर सकते हैं, इसको भी R1 बोल सकते हैं, इसको भी R1 बोल सकते हैं। इट्स योर सेकंड रेजिस्टेंस R2, इट्स योर थर्ड रेजिस्टेंस R3। अब देखेंगे ये दो रेजिस्टेंस जो है आमने सामने, मीन दीज टू रेजिस्टेंस आर इन पैरेलल। अब पैरेलल का क्या फॉर्मूला था मेरे पास, 1 upon R, 1 upon R1 प्लस 1 upon R2। जितने भी रेजिस्टेंस हैं, जैसे यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस है, लास्ट में जब हमने डेरिवेशन करा वहां पे हमारे पास 3 रेजिस्टेंस थे, तो यहाँ पे 1 upon R1, 1 upon R2 प्लस 1 upon R3। अब यहाँ पे मेरे पास 2 रेजिस्टेंस हैं, तो मैंने क्या करा, 1 upon R इज इक्वल टू R1 का वैल्यू आपके पास 1 upon 3 प्लस, और R2 का वैल्यू आपके पास 6। तो आपको ये भी फॉर्मूला पता है कि 1 upon R1 प्लस 1 upon R2, इसको आप क्या लिख सकते हैं, R1 मल्टीप्लाई बाय R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो जैसे सिमिलर यहां से R निकाल रहा हूं, तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला R1 इज 3 मल्टीप्लाई बाय 6 अपॉन 3 प्लस 6, मीन 3 इंटू 6 18 अपॉन 9, 9 2 दैट इज 2, मीन R2 R इज इक्वल टू 2 ओम या R12। इन दोनों की कॉम्बिनेशन का जो रिजल्ट आया मेरे पास कितने ओम का आया, 2 ओम। मीन फिर से डायग्राम बना रहा हूं, यहां पे ये मैंने R12 सॉल्व करा, ये आया मेरे पास 2 ओम, और इसके अगेन यहां पे सीरीज में R3 दैट इज अगेन 2 ओम। ऐसे है, मीन्स मैंने इन दोनों को सॉल्व करा, इन दोनों का रिजल्ट आ रहा है मेरे पास 2 ओम, और जो इनका रिजल्ट आया वो यहां पे जो इस 3 रेजिस्टेंस के सीरीज में। तो मैंने क्या करा, R123 इज इक्वल टू, सीरीज का फॉर्मूला आपको पता है, R12 प्लस R3। तो R12 का वैल्यू कितना आ रहा है मेरे पास, 2 ओम प्लस, और R3 भी कितना दिया हुआ है, 2, मीन योर टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 4 ओम। तो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि कहां पे टर्मिनल है, कौन से रेजिस्टेंस जो है सीरीज में और कौन से रेजिस्टेंस जो है पैरेलल में। अगेन फॉर एग्जाम्पल आगे आपके पास डायग्राम है,
फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये डायग्राम गिवन है और इस पॉइंट को नाम दिया उसने ए और इस पॉइंट को नाम दिया बी और बोला गया है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में आपने टोटल रेजिस्टेंस बताना है। फॉर एग्जाम्पल ये 2 या ऑल द रेजिस्टेंस आर ऑफ 2 हो, ये सभी 2 दिए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान से देखेंगे, जो आपको टर्मिनल पूछा है, जैसे आपको ए बी टर्मिनल पूछा है तो ए बी आपका लास्ट एंड में जो सेक्शन पूछा है उसके अपोजिट एंड से क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं। जैसे ए बी यहां पे एक और हिंट दे रहा हूं, जैसे आपको फॉर एग्जाम्पल ऐसे डायग्राम गिवन है, ये ए बी आपको पूछा है कि ए बी के बीच में टोटल रेजिस्टेंस बताना है। तो ए बी आपका लेफ्ट हैंड है तो हमने क्वेश्चन कहां से स्टार्ट करना है, राइट हैंड से। क्लियर? जो चीज पूछी है उसके अपोजिट सेक्शन से क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। अगर फॉर एग्जाम्पल ये बी सेक्शन जो है ऐसे होता, ऐसे मतलब ए वन एंड के ऊपर है और बी दूसरे एंड के ऊपर है, तो दोनों एंड के ऊपर है तो क्वेश्चन कहां से स्टार्ट करना है, हमने मिडल पोर्शन से। ये आपका रूल है। अब यहां पे ये देखो, सबसे पहले मैंने इसको नंबरिंग कर दिया R1 R2 R3 R4 एंड R5। 5 रेजिस्टेंस है। अब मैंने क्वेश्चन को देखना स्टार्ट करा ऊपर से, यहां से देखना स्टार्ट करूंगा। अब सबसे पहले हम समझेंगे यहाँ पे ज्वाइंट कहां पे, ये देखो यहाँ पे जोड़ है, वायर का जोड़ लगा है, इट मीन इट इज ए टर्मिनल। ये जोड़ लगा है, इस साइड को भी वायर है, इस साइड को भी वायर है, यहां पे भी जोड़ है, टर्मिनल है, इस साइड को भी, इस साइड को भी, इस साइड को भी। अब देखेंगे ये देखो ये 2 रेजिस्टेंस है, ये R1 और R2, इन दोनों के बीच में कोई जोड़ नहीं है, ज्वाइंट नहीं है। मीन अगर मैं यहां से वायर को निकालूं तो ये दोनों रेजिस्टेंस हो जाएंगे एक ही लाइन में सीरीज में। तो आपने देखना है कि क्या कुछ जो रेजिस्टेंस लगे उनके बीच में कोई जोड़ है, ज्वाइंट है कि नहीं है। तो इन दोनों के बीच में कोई जोड़ नहीं है, आगे यहां से कोई वायर नहीं जा रही है। अगर यहां से वायर जाती होती तो मैं इनको सीरीज में नहीं बोल सकता हूं। तो ये दीज 2 रेजिस्टेंस आर इन सीरीज। तो क्या करा मैंने, R12 मीन R1 प्लस R2, ये सीरीज का फॉर्मूला है। R12 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4 ओम। अब फिर से डायग्राम बता रहा हूं आपको, यहां पे आ गया जी आपके पास R12 का वैल्यू आया 4 ओम और यहां पे R3 है, R3 का वैल्यू है 2 और यहां पे ये आपका A सेक्शन है और ये आपका B सेक्शन है, ये भी 2 ये भी 2। अब इन दोनों का रिजल्ट आया मेरे पास 4। जो R12 का रिजल्ट आया वो 3 के पैरेलल, मींस 1 अपॉन R123 इज इक्वल टू 1 अपॉन R12 प्लस 1 अपॉन R3। तो क्या आ जाएगा जी, 1 अपॉन R123 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 2। तो जैसे मैंने आपको पहले फॉर्मूला बताया, क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 2 अपॉन 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 8/6। डेसिमल में निकलेगा। ये आ जाएगा 1.33। अब फिर से अगेन समझेंगे क्या डायग्राम बन गया आपके पास। अब जब मैंने इसको भी सॉल्व कर दिया तो अब मेरे पास डायग्राम है जी, ये A और ये B, ये R4 2, ये R5 2 और R123 मैंने सॉल्व कर दिया 1.33। पहले ये दोनों सीरीज, इन दोनों का आंसर जो आया इसके पैरेलल, जो इन तीनों का आंसर आया। अब देखेंगे क्या इन तीनों रेजिस्टेंस के बीच में कोई जोड़ है, कोई वायर जा रही है आगे, नहीं जा रही है। इट मीन दीज 3 रेजिस्टेंस आर इन सीरीज। तो क्या करेंगे, R टोटल इज इक्वल टू R4 ये वाला प्लस R123 प्लस R5। R टोटल इज इक्वल टू R4 का वैल्यू है 2 प्लस
R123 का वैल्यू है मेरे पास 1.33 प्लस, और R5 का वैल्यू कितना है 2, 1 कितना बन गया 3 और यहाँ पे 5, मीन R टोटल इज इक्वल टू 5.3। ये आपके पास आंसर है। तो अंडरस्टैंड करना पड़ेगा आपको कि कौन सा रेजिस्टेंस सीरीज में और कौन सा रेजिस्टेंस जो है पैरेलल में। एक न्यूमेरिकल और बता रहा हूं, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये कंडीशन जो है समझनी पड़ेगी कि कौन से रेजिस्टेंस को आप सीरीज में बोल रहे हैं और कौन से रेजिस्टेंस को आप पैरेलल में बोल रहे हैं। तो इसको आपने नोट करना है तो नोट कर लीजिए। अब यहां से अब तक तो हम रेजिस्टेंस फाइंड कर रहे थे, अब थोड़ा सा कुछ और चेंजेस लेके आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास एक कि इन द गिवन सर्किट फाइंड द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। इन द गिवन सर्किट, इन द गिवन सर्किट find the current drawn from the battery, from the battery। डायग्राम थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लगेगी, बट जो इसका आंसर है या जो सॉल्यूशन है वो बहुत इजी है। यहाँ पे एक बैटरी गिवन है आपको जी, और ये डायग्राम है। अब यहाँ पे जो आपको ये बैटरी गिवन है दैट इज इक्वल टू 6 वोल्ट, ठीक है जी, और ये रेजिस्टेंस है आपके पास 7 ओम, ठीक है, 1 4 1 4 4 1, क्लियर, और ये 4 1 और 1 एंड 4, ये है। तो क्या करना पड़ेगा हमारे को, एक तो रेजिस्टेंस बताएंगे और नेक्स्ट करंट निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ करंट का फॉर्मूला है I इज इक्वल टू बी अपॉन आर। तो बी तो गिवन है 6, ठीक है, आर हमारे को निकालना पड़ेगा। अब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, हम नंबरिंग कर देते हैं इसको, R1 R2 R3 R4 5 6 7 8 एंड 9 रेजिस्टेंस गिवन है। बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। अब यहां से देखना क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा मैं। यहां से एक वायर जा रही है, एक रेजिस्टेंस है, यहां से इस वायर का डिवीजन हो गया, मींस दो अलग अलग डायरेक्शन में वायर जा रही है। अब देखेंगे क्या इन दोनों के बीच में आगे जोड़ है, नहीं है, तो एक टर्मिनल ये बन गया और एक टर्मिनल ये बन गया। टर्मिनल मीन ज्वाइंट, एक ज्वाइंट ये है और एक ज्वाइंट ये है, ना तो इन दोनों के बीच में आगे जोड़ है ना इन दोनों के बीच में आगे जोड़ है। सिमिलर एक ज्वाइंट ये बन गया और एक ज्वाइंट ये बन गया। इसका मतलब ये हुआ ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज, इसका आंसर जो आएगा इसके आंसर के पैरेलल। सिमिलर ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज, इसका आंसर इसके आंसर के पैरेलल। यहां पे मिडल में आंसर बनेगा, यहां पे मिडल में आंसर बनेगा, और ये तीनों क्या हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे। तो ध्यान से देखेंगे, पहले R12 निकालते हैं। R12 इज इक्वल टू R1 प्लस R2 दैट इज इक्वल टू 1 का वैल्यू 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 5 ओम। इन दोनों का आंसर कितना है, 5। सिमिलर R34 इज इक्वल टू R3 प्लस R4 इज इक्वल टू 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5 ओम। आगे चले जाते हैं, यहां पे R56,
R5 6 is equal to R5 plus R6 4 plus 1 that is equal to 5 ohm. Similar R7 8 is equal to R7 R8 is equal to 1 plus 4 is equal to 5 ohm. अब आपको एक बार फिर से इसकी डायग्राम बता रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। यहां पे एक रेजिस्टेंस है R9 जिसकी वैल्यू आपके पास 7। आगे अब जी आपके पास ये डायग्राम आ गई एज सच। यहां पे ये देखेंगे R12 का वैल्यू आया 5, R34 ये भी 5, R5 6 ये भी 5, R7 8 ये भी 5। अब क्या हुआ कि इसका आंसर इसके आंसर के पैरेलल, ध्यान से देखेंगे। 1/R1234 1/R12 plus 1/R34 that is 1/5 1/5 2/5 रेसिप्रोकल करेंगे। R1234 is equal to 5/2 is equal to 2.5 ohm। इन दोनों का आंसर आ गया 2.5 ohm। सिमिलर आगे 1/R5 6 7 8 1/5 plus 1/5 2/5 मीन 5/2 मीन 2.5। अब फिर से डायग्राम बना रहा हूं। अब डायग्राम आ गई जी, ये R9 7, यहां पे ये R1 2 3 4 ये आ गया 2.5, ये R5 6 7 8 ये भी कितना आ गया 2.5। अब ये तीनों किसमें सीरीज में, R टोटल R9 प्लस R1 2 3 4 प्लस R5 6 7 8 मीन R टोटल 7 प्लस 2.5 प्लस 2.5 कितना आ गया 5 और R टोटल इज इक्वल टू 12 ओम। तो आपको कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा कि कैसे आप किसी भी रेजिस्टेंस की कॉम्बिनेशन कर रहे हैं। ये तो आ गया जी आपके पास टोटल रेजिस्टेंस। अब निकालना है मैंने करंट I इज इक्वल टू B का वैल्यू है 6 और टोटल रेजिस्टेंस आ रहा है मेरे पास 12 ओम, मीन कितना आ जाएगा 1/2 मीन करंट इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर। कितना आ जाएगा जी करंट 0.5 एम्पियर। तो बिल्कुल अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि कौन सा रेजिस्टेंस जो है यहाँ पे सीरीज में और कौन सा रेजिस्टेंस जो है पैरेलल में। तो यहाँ तक आपने ट्राई करना है। नेक्स्ट टाइम जो भी आपकी नेक्स्ट वीडियो होगी वहां पे हम